Assalamu alaikum and very good morning to all of you today. Today we are going to start a topic, but before to go here, I would like to start with the name of Allah Almighty, who's sustainer, who's generator, who's provider, and whose glorification cannot be described in words. As me, I am Sajad Hussain, the English teacher and accent trainer as well. Here we are going to start a topic that is a communication. Before to go here, I simply can tell you that language is very important for us. Everybody in this entire world, in this entire surface, everybody wants to speak language. Everybody wants to communicate. But that communication is very important. Everything do. The God has created omnifarious things. These all omnifarious things want to communicate with each other. For example, human beings communicate to each other, the animals communicate, the birds communicate to each other, even the insects communicate. अपने ज़बान में हम नहीं समझते, उनकी अपनी ज़बान होती है, अपने ज़बान में करते हैं, but they communicate. ठीक है? So communication means delivering and receiving thoughts. What is communication? Communication का मतलब होता है, the communication means delivering and receiving thoughts. Whenever you deliver the word, the person who talking to you, you receive the word and he responds you, right? That is called the delivering and receiving thoughts is called communication. अब communication का मतलब होता है कि अपनी बात किसी तक पहुंचाना, और बात आप तब पहुंचाएंगे जब आप communicate करेंगे. Without communication you cannot आप जो है अपनी बात नहीं पहुंचा सकते हैं, right? So communication is very important. But communication, there are the two types of communication. अब communication करने के भी कितने types होते हैं? There are the two types of communication. Communication करने के दो types होते हैं. Number one, it is a verbal communication, and number two is a non-verbal communication. एक होता है verbal communication, दूसरा होता है non-verbal communication. What is verbal communication and what is a non-verbal communication? We will learn through examples. Let's go. So the verbal communication, the word verbal communication, let me tell you, I simply can tell you, the word verbal is taken from a verb. The word verbal is taken from verb. Verb means word. जो word verbal है वो निकाला गया है verb से, और verb का मतलब होता है word, लफ्ज़ जिसको हम कहते हैं, लफ्ज़, right? तो verbal communication करने के लिए आपके पास एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है. What is that? What's important thing for us to do a verbal communication? I tell you, it's a language. Language is very important for you to speak with someone. आप जब verbal communicate करते हैं तो verbal communication करने के लिए आपके पास ज़बान का होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके पास ज़बान है, you can communicate. अगर ज़बान नहीं है तो आप कैसे communicate करेंगे? बगैर ज़बान के तो आप communicate कर ही नहीं सकते, right? So ज़बान का होना ज़रूरी है. तो how many languages are spoken in this world? That is a question. How many languages are spoken in this entire world on the surface of earth? कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? There are more than 7,000 languages. How many languages? There are more than 7,000 languages are spoken in this world. Plus 7,000 means more than 7,000. 7,000 से भी ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं. सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में कितनी ज़बानें हैं? पंजाबी है, सिंधी है, उर्दू है, ब्रावी है, इंग्लिश भी बोली जाती है, चाइनी भी बोली जाती है. So there's a lot of languages in this country, Pakistan as well. If we talk about other countries, they have a lot of languages. So my dears, I'm talking about Chani language, okay? Chani language, for example, this is a question. अब सवाल ये है, what is most spoken language of the world? What is the widest spoken language of this world? इस दुनिया की most spoken language कौन सी है? That is a Chinese. The most spoken language of the world is a Chinese. दुनिया की most spoken language जो है वो Chinese language है. Chinese is one of the most spoken language of this world. ठीक है? I am talking about the native languages, mother language. I am talking about native and mother language. मैं native language की बात कर रहा हूँ, mother language की बात कर रहा हूँ, right? तो अब इससे पता चलता है what is language? Language means language is a medium of verbal communication. अब यहाँ से पता चलता है we understand
द लैंग्वेज जो है वो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन करने का एक मीडियम है. लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, राइट. लेट्स गो. सवाल ये है, अगर चाइनी दुनिया की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है तो व्हाई वी डोंट लर्न चाइनी. अगर चाइनी दुनिया की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है तो फिर हम चाइनी क्यों नहीं सीखते. व्हाई वी डोंट लर्न चाइनी, दैट्स अ क्वेश्चन, राइट. सो सिंपली आई कैन टेल यू 3 रीजंस. चाइनीज ज़बान सीखने के लिए we need to live over there. 3 reasons है जो हम यहाँ पे नहीं सीख सकते. We cannot learn Chinese in our country. Why? Number 1, Chinese is the most difficult language of the world. Chinese दुनिया की most difficult language है, most difficult language. Number 2, no alphabet and it's a symbolic language. No alphabet. चाइनीज लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट नहीं होते. जैसे हमारे पास उर्दू में, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है, there are 26 alphabet letters in English language. इस तरह से चाइनीज लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट लेटर्स नहीं है, राइट. अगर किसी ज़बान के अल्फ़ाबेट लेटर्स नहीं है तो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, हाउ यू कैन लर्न. वी कैन नॉट लर्न, राइट. इट इज़ अ सिंबलिक लैंग्वेज. वी कैन नॉट लर्न, मैंने कहा वी कैन लर्न बट वी हैव टू गो ओवर देयर, राइट. So it's a symbolic language. What by means symbolic language? I'll tell you. And number 3, top to bottom. Top to bottom means ऊपर से नीचे लिखी जाती है. चाइनीज लैंग्वेज जब ये लिखते हैं ऊपर से नीचे लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा इंटरनेट पे या आप someone went to China, तो वहाँ पे जो चाइना की मार्केटें होती है, जो टाउन होते हैं, वो दुकानों पे बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं और उन बैनर पे कुछ लिखा होता है चाइनीज में. मतलब टॉप टू बॉटम लिखा होता है, टॉप टू बॉटम, राइट. लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं लिखा होता है. जैसे हम उर्दू लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, सिंधी राइट टू लेफ्ट ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश लेफ्ट टू राइट, तो इस तरह से वो नहीं होता. टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे. सवाल ये है, इट इज़ अ सिंबलिक लैंग्वेज. हाउ इट इज सिंबलिक लैंग्वेज? लेट मी टेल यू, आई एम टेलिंग यू. फॉर एग्जाम्पल सिंबलिक लैंग्वेज कैसे? वेन एवर वी टॉक अबाउट ट्री, जब हम ट्री की बात करें, अंग्रेजी में तो हम लिख लेते हैं TREE tree, but whenever we talking in Chinese language, we do not write TREE. Then what we will write? For example, whenever we talking about tree, हम क्या करेंगे? Tree के बजाय इसे symbol बना देंगे. This is a tree over here, right? When we talk about the word speak, we will make the symbol like this. इसका मतलब है speak, right? Whenever we talk about the fire, तो हम इस तरह से सिंबल बना देंगे, मतलब कि लकड़ियाँ जल रही है, आग जल रही है, लाइक दैट. तो दिस इज अ सिंबल, राइट. दिस इज अ फायर. एंड द वर्ड खाओ जब हम खाएंगे तो खाओ के हम इस तरह सिंबल बना देंगे, द सींग बना देंगे, बुल ऑफ कैट्स, लाइक दैट. ओके. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ पर्सन, जब हम किसी पर्सन की बात करें चलता हुआ एक आदमी बना दें, मतलब पर्सन हो गया. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट क्राउड का मतलब होता है रश, तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट क्राउड तो 2 चलते हुए आदमी बना दें, मतलब रश हो गया, ठीक है. So there are only 6 sounds in Chinese language. Chinese language में टोटल 6 साउंड है और उन 6 साउंड्स में से भी 2 साउंड ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली यूज़ किए जाते हैं. शी एंड ची को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है चाइनीज लैंग्वेज में. फॉर एग्जाम्पल, अब शी और ची में क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ साउंड. वो अंडरस्टैंड कैसे करते हैं? क्योंकि 6 वर्ड यूज़ होते हैं, उनमें से भी जो 2 वर्ड्स हैं वो मोस्ट ऑफ द यूज़ होते हैं, तो फिर वो कैसे समझते हैं कि कौन क्या कह रहा है, ठीक है. तो वो ड्यूरेशन ऑफ साउंड्स, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट की मदद से समझते हैं कि कौन क्या कह रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ शी का मतलब होता है, शी मतलब शुक्रिया. अब इसी वर्ड को मैं कहूँ शी तो मतलब इस्तकबाल करना. शी मीन्स के रुखसत हो जाना. तो मतलब फॉर एग्जाम्पल ड्यूरेशन ऑफ साउंड आप चेक करें, शी, ठीक है. अब ये होता है ड्यूरेशन ऑफ साउंड. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कैट भी लिखा है. अब इंग्लिश में हम तो ऐसे नहीं कहेंगे ना. इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैट है, तो अगर मैं कहूँ कैट तब ये बिल्ली होगा ना, मतलब कैट. अब ये क्या हो जाएगा? ये बिल्ली होगा ना. इट विल नॉट बी चेंज. जब हम कैट को कैट कहें या केट कहें तो मीनिंग विल नॉट बी चेंज, कैट ही रहेगा, ठीक है. तो वो क्या करते हैं? ड्यूरेशन ऑफ साउंड से समझते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द चाइनीज लैंग्वेज.
कि दुनिया की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, उसके बावजूद भी हम नहीं सीखते क्योंकि ये सारे रीजन है। इस वजह से हम वी डू नॉट लर्न चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है, हमारा मकसद जो है वो चाइनीज सीखना नहीं है। अवर पर्पज इज नॉट टू लर्न चाइनीज, अवर पर्पज इज टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश, यस, लेट्स गो। हमारा मकसद चाइनीज सीखना नहीं, हमारा मकसद है इंग्लिश लैंग्वेज सीखना। तो हाउ वी कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए लेट मी टेल यू वन थिंग। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज दिस इज अ सेकंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये दुनिया की सेकंड इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ होती है। एवरीबडी टॉक्स। अब देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल आप जब घर में होते हैं तो आप सिंधी उर्दू में बात कर लेते हैं, आप जब स्कूल जाते हैं वहाँ पे भी आप सिंधी उर्दू में बात कर लेते हैं, शादी तकरीबात में जाते हैं वहाँ पे भी आप सिंधी उर्दू में बात कर लेते हैं, आप कर सकते हैं, दोस्तों के साथ भी करते हैं। मगर जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, जब आप किसी बड़ी जॉब के लिए जाते हैं, आप किसी फैक्ट्री या कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट? तो अंग्रेज़ी इस वजह से ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ क्या है कि फॉर एग्जांपल मैनेजर, अच्छा मैनेजर वही लगेगा जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी। तो अंग्रेज़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ठीक है, तो हमारा मसला पता ही क्या है, हम पाकिस्तानी का मसला ये फॉर एग्जांपल कि हम जो पाकिस्तानी है ना वो टांग खींचने वाली कौम है। नहीं हम खुद आगे जाएंगे, नहीं हम किसी को आगे जाने देंगे। ठीक है, हम टांग खींचने वाली कौम है ना, नहीं हम आगे खुद आगे जाएंगे और किसी और को जाने देंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल 5 बंदों का ग्रुप है, देयर इज अ 5 स्टूडेंट्स ग्रुप, दे कैन लर्न इंग्लिश थ्रू मेमोराइजिंग मेथड। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज के 2 मेथड्स होते हैं ना, 2 मेथड्स, मतलब हर ज़बान के 2 मेथड्स होते हैं और उन मेथड्स के अलावा तीसरा मेथड नहीं होता। देयर आर ओनली द 2 मेथड्स। तो नंबर 1 मेमोराइजिंग मेथड एंड ग्रामर मेथड। मेमोराइजिंग मेथड का मतलब क्या होता है? मेमोराइजिंग मेथड मीन्स कि फॉर एग्जांपल मैं यही बात कर रहा था कि अगर 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उनकी अंग्रेज़ी मतलब एक की अंग्रेज़ी ज़बरदस्त है, अच्छी है, तो अगर वो कम्युनिकेट करेगा तो बाकी उससे सीख लेंगे। पर ऐसा भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर 5 दोस्त हैं, वो अगर कोई बंदा स्पीक करना चाहता है, अंग्रेज़ी में बोलना चाहता है, तो वो बोलता है तो सारे उसके मजाक उड़ाते हो कि भाई क्या हो गया, फरंगी हो गया, अंग्रेज़ चले गए, नमूने छोड़ गए। तो इस तरह से कहेंगे तो फिर डेफिनेटली वो जो है वो अंग्रेज़ी में बात नहीं करेगा, राइट? तो हमारे पास 2 टाइप्स होती है, 2 मेथड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर द 2 मेथड्स। नंबर 1 मेमोराइजिंग मेथड एंड ग्रामर मेथड। मेमोराइजिंग मेथड का क्या मतलब है? मेमोराइजिंग मेथड मीन्स जो ज़बान आप घर में सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल उर्दू, मैंने यहाँ पे लिखा वी लर्न उर्दू थ्रू मेमोराइजिंग मेथड। अब जो आप उर्दू बोलते हैं, जो मैं उर्दू बोल रहा हूँ, दिस इज़ अ मेमोराइजिंग मेथड। ये हमने मेमोराइजिंग मेथड से सीखी है। मतलब कि हम we did not go to university, we didn't go to university to learn Urdu grammar। हम जो है वो उर्दू ग्रामर नहीं सीखे हैं, हम यूनिवर्सिटी जाके नहीं सीखे। तो मेमोराइजिंग मेथड का मतलब होता है जो घर में ज़बान बोली जाती है, जो बच्चे घर में सीखते हैं, सिंधी उर्दू। अब ये जो आप लोगों को ज़बान आती है, आप बात कर सकते हैं, ये आपने मेमोराइजिंग मेथड से सीखी है, आप किसी यूनिवर्सिटी किसी सेंटर में जाके नहीं सीखी आप लोगों ने। ठीक है, तो दिस इज़ ए मेमोराइजिंग मेथड। ये होता है मेमोराइजिंग मेथड, जो बच्चा घर में फैमिली मेम्बर्स को सुनता है और उनसे सीखता है। दिस इज कॉल्ड मेमोराइजिंग मेथड। तो अगर आप चाहते हैं कि हम मेमोराइजिंग मेथड से अंग्रेज़ी सीखें, तो या तो फिर आप क्या करें कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, या तो फिर आप यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, या फिर आप जो है वो अपने दोस्तों के साथ सीखें। तो दोस्तों के साथ हम नहीं सीख सकते, और हम जो है वो सारे मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएंगे। तो हाउ वी कैन लर्न इंग्लिश? हम जो है वो मेमोराइजिंग मेथड से नहीं सीख सकते। मेमोराइजिंग मेथड से हम अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते क्योंकि इसके लिए चाहिए एनवायरनमेंट। वी नीड एनवायरनमेंट टू लर्न इंग्लिश थ्रू मेमोराइजिंग मेथड, और वी डोंट हैव अ मेमोराइजिंग मेथड। अब मोस्टली क्या होता है कि जो स्कूलें होती हैं ना, जैसे प्राइवेट स्कूल्स और इवन जो स्कूलें होती हैं जिनका नाम होता है इंग्लिश स्कूल, ठीक है, इंग्लिश एकेडमी होता है, मगर वहाँ पे अंग्रेज़ी में बोला नहीं जाता। टीचर्स डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश, वहाँ पे सारे टीचर जो है ना वो उर्दू में बात करते हैं। ठीक है, सो हम जो है वो मेमोराइजिंग मेथड से तो नहीं सीख सकते, तो फिर हमारे लिए एक ही मेथड है, वो है ग्रामर मेथड। अब ग्रामर मेथड में क्या है? व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन ग्रामर मेथड? ग्रामर मेथड में हमारे पास है सेट ऑफ रूल रेगुलेशन थ्रू वी लर्न लैंग्वेज। हम रूल रेगुलेशंस के जरिए जो है वो एक ज़बान को सीखते हैं। रूल रेगुलेशन फार्मूला एंड पैटर्न्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं? वो ज़बान सीखते हैं। जो भी ज़बान हम सीखना चाहते हैं उस ज़बान को सीखने के लिए रूल रेगुलेशन फार्मूला
and patrons are very important to learn that language. ठीक है, तो हम ग्रामर मेथड से ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करके फिर सीखेंगे। तो लेट मी टेल यू ग्रामर टॉपिक्स, मैंने यहाँ पे ग्रामर टॉपिक्स मेंशन किए हैं, ये थ्रू ऑफ द ईयर्स है, मतलब कि थ्रू ऑफ द ईयर्स हम इससे भी और बहुत सारे ज़्यादा टॉपिक्स हैं हमारे पास, हम सब सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक जो है वो मेंशन किए हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वी विल लर्न दिस टॉपिक्स थ्रू एडवांस एंड इन एडवांस लेवल एंड विद एक्सेप्शनल रूल के साथ हम सीखेंगे। तो ग्रामर में कितने टॉपिक्स हैं? एबीसी ऑफ इंग्लिश, एबीसी ऑफ ग्रामर या एबीसी ऑफ इंग्लिश, एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, tenses, voice, narration, conditional sentence, modal auxiliary verb, causative structure, ये सारे टॉपिक्स हैं और इससे भी और बहुत सारे ज़्यादा टॉपिक हैं। तो we will learn these topics throughout the years। पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है ABC of English। ABC of English हम स्टार्ट कर रहे हैं। What by mean the ABC of English? ABC of English means, for example, alphabet. There are 26 alphabets in English language। English language में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 26 English alphabets. Letters are called ABC of English। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट 26 है। अब these alphabets are divided into two parts। अब ये अल्फ़ाबेट जो है ना वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 vowels and consonants। vowels A-E-I-O-U, ठीक है, and consonants like B, C, D, F onwards। वॉवेल जो है वो टोटल 5 वर्ड्स हैं। दिस इज नॉट अ वॉवेल, दिस इज अ वॉवेल। वॉल या वॉवेल, राइट। सो अब सवाल ये है कि विदाउट वॉवेल लेटर वी कैन नॉट मेक एनी सिंगल वर्ड। विदाउट वॉवेल लेटर के हम कोई भी वर्ड नहीं बना सकते, बट वी कैन मेक द वर्ड विदाउट यूजिंग वॉवेल, राइट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल फ्राई, क्राई, शाई, ट्राई, स्पाई, स्काई, सिलाई, एक्सेट्रा। अब हमने वर्ड बनाया। these are the words and these all words are made by 3 English alphabetic letters and these 3 English alphabetic letters are consonant। 3 अल्फ़ाबेट लेटर से बनाए गए और ये 3 लेटर जो हैं वो consonant letters। पर यहाँ पे समझने की बात ये है, दिस इज एक्सेप्शन। समझने की बात ये है कि हम जो है वो वॉवेल या consonant पे डिपेंड नहीं कर रहे। we depend on what? We have to understand the concept। हमने कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने वोवेल और कॉन्सोनेंट पे डिपेंड नहीं करना, हमने इसको नहीं देखना है। We have to understand concept through the phonetics of the word, phonetics of the sound of the letter, sound of the word। Like fry, अब जो साउंड दे रहा है वो है अ की, लास्ट में फ्राई, फ्राई, क्राई, लास्ट में साउंड जो है वो अलिफ की आ रही है, अ की आ रही है। We have to consider this is a vowel, right? अब ये जो y है, y is common। यहाँ पे शायद आपने नोट किया होगा y जो है वो यहाँ पे कॉमन है। y is a common over here। y is a common क्योंकि इन सारे वर्ड्स में लास्ट में y है और y जो है वो अलिफ की आवाज़ दे रहा है, right? तो अब y यहाँ पे क्या है? y यहाँ पे है सेमी वॉवेल। What is y? y is a semi vowel over here। जब y अलिफ की आवाज़ दे तो सेमी वोवेल है, जब कोई और आवाज़ दे तो सेमी कॉन्सोनेंट है। तो मतलब इससे पता चलता है कि y जो है वो 2 जगहों पे यूज़ होता है। y ऑलवेज यूज्ड एज अ वोवेल एंड एज ए कॉन्सोनेंट। वोवेल के तौर पे भी यूज़ होता है, कॉन्सोनेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, ठीक है। तो वोवेल हम तब कंसिडर करेंगे जब कोई भी वर्ड, चाहे वो कॉन्सोनेंट दूसरा वर्ड क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट y के अलावा भी वर्ड्स हैं, तो जब वो अलिफ की आवाज़ देंगे तो वो वोवेल होंगे, ठीक है। जब वो ये या कोई भी और आवाज़ देंगे तो वो कॉन्सोनेंट होंगे। अब यही y मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। जैसे सेम y यहाँ पे देखो मैंने लिखा है यूअर। अब यूअर में जो y है वो क्या है? यहाँ पे जो y है वो कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है। y यहाँ पे जो है वो कॉन्सोनेंट है क्योंकि पहले से u की आवाज़ दे रहा है, राइट। यूअर, व्हाट? यूअर, यू की आवाज़ दे रहा है, ये की आवाज़ दे रहा है, तो y यहाँ पे क्या है? सेमी कॉन्सोनेंट है, एक्सेप्ट सेमी वोवेल, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारे पास लेटर। व्हाट इज लेटर? Letter always, whenever I ask from the students what's a letter, they say there are the 2 kinds of the letters. Yes, there are 2 kinds of the letters. Letter जो हम कहते हैं खत, ठीक है, जो 2 तरह के लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर, दूसरा अनफॉर्मल लेटर। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लेटर।
आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट हुरूफ। हम मैं हुरूफ की बात कर रहा हूँ, मैं उस लेटर की बात नहीं कर रहा। तो दिस लेटर इज कॉल्ड हुरूफ, ठीक है, जिसको हम हुरूफ कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वी हैव टू वर्ड्स जैसे कैट और बुक। अब कैट और बुक में क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस, व्हाट इज दैट कि कैट जो है वो एक लेटर है, ठीक है। कैट ये पूरे का पूरा वर्ड है, बुक भी पूरे का पूरा वर्ड है, लेकिन ये वर्ड कैसे बनाया गया है, we use a letter to make this word. The combination of letters make a word. ये letter का combination है जिसने एक word बनाया। For example, cat. अब cat का अगर हम निकाल, for example, whenever I say कि ये जो C है वो एक letter है, तो यहाँ पे जो B है वो भी एक letter है, A भी एक letter है, T भी एक letter है। तो C जो है वो क्या है, single alphabetic letter है, और A भी जो है वो single alphabetic letter है। लेकिन whenever they combine each other, they make a word. जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, वर्ड बनता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी लेटर होते हैं जो सिंगल अल्फाबेटिक लेटर होते हैं लेकिन फुल मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सी लिखेंगे तो सी हमें जो है वो फुल मीनिंग नहीं देगा, बट हम जब आई लिखते हैं तो आई क्या करती है, हमें फुल मीनिंग देती है। दिस इज अ सिंगल अल्फाबेटिक लेटर विच गिव्स फुल मीनिंग, विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, राइट। सो आई एंड ओ, हम कहते हैं ना ओ, ठीक है, एंड आई मीन्स मी, आई एम, ओके। उसके बाद है सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस, ठीक है। जनरल बता दूं कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज से क्या बनता है, वर्ड क्या है, वर्ड से क्या बनता है। फॉर एग्जांपल, लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड द लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना शॉर्ट में, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक टूल है बातचीत करने के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या है, द स्मॉलेस्ट अल्फाबेटिक लेटर्स कंबाइन टू मेक अ वर्ड, ठीक है। स्मॉल अल्फाबेटिक लेटर्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है। सो द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, द ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, द ग्रुप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पैराग्राफ, द ग्रुप ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड एसे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसे जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज सेंटेंस, यहाँ मैंने लिखा है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। अब सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस और इसमें फर्क क्या है। सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूर टीचर, आई एम यूर टीचर। अब इसको हम ऐसे भी कहेंगे, आई एम यूर टीचर, टीचर, राइट, आई एम यूर टीचर। तो आई एम यूर टीचर में क्या है कि ये पूरे का पूरा एक सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। अब ये कंप्लीट सेंटेंस है तो मैंने यहाँ दूसरा लिखा है इन द मार्केट। इन द मार्केट क्या है, व्हाट इज दैट। अगर वो पूरे का पूरा सेंटेंस है तो इन द मार्केट ये क्या है, दिस इज अ फ्रेज, ठीक है। ये जो है वो क्या है, ये एक फ्रेज है। इन द मार्केट एक फ्रेज है, वो पूरे का पूरा मतलब है। फ्रेज मीन्स जो मुकम्मल मीनिंग ना दे, ठीक है। सेंटेंस पूरी मीनिंग दे रहा है, फ्रेज मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा, ठीक है। लेट्स गो। हमारे पास सेंटेंस है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। व्हाट इज स्पेशल इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में स्पेशल क्या है। इस सेंटेंस में स्पेशल ये है कि अल्फ़ाबेट के जितने 26 अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं वो सारे इस सेंटेंस में मौजूद हैं। अ क्विक ब्राउन फॉक्स, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। एक तेज ब्राउन फॉक्स ने जंप लगाई लेजी डॉग के ऊपर, लेजी डॉग के ऊपर से छलांग लगाई, ठीक है। सो यहाँ पे अल्फ़ाबेट की 26 लेटर्स हैं, पूरे 26 लेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं इस पूरे सेंटेंस में। तो आई होप कि यू लर्नड अबाउट दिस एंड थैंक्स अ लॉट।